Good morning, students. Today we are going to start chapter number 6 of class 8 Honeydew. This is Jodie's fawn. First of all, do you know the meaning of fawn? Fawn is you can say, a child of a deer, right? And Jodie is a boy in this chapter. It's an interesting chapter. Let's start with before you read itself. Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for cut on your knee, burn on your arm, or bee sting? In this chapter, the author is actually asking you that whenever you got injured by something, so you just find cure at your home only with the things available at, right? And you just generally search for some home remedies. For example, if you have a cut on your knee, what will you apply? You will apply some turmeric, right? And a burn on your arm, what will you apply? We generally apply Colgate or some kind of a paste on it, right? Any paste we can apply. For bee sting we just apply mentha or some iron equipment. In this story, Jodie's father has been bitten by a rattlesnake. Rattlesnake, you may understand like this, any a kind of a snake only, right? It's very harmful snake, right? It's a kind of a snake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. The meaning of doe. What is doe? Doe means a female deer. You should remember, doe means a female deer. And what Jody does, he just uses its hearts and liver for what? To draw out the poison, ताकि वो अपने फादर के अंदर से जो भी रेटल स्नेक का पॉइजन है वो बाहर निकाल पाए. जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. बट सबसे बुरी बात क्या थी कि जिस डो को जोडी ने मारा था अपने फादर को बचाने के लिए, उसका एक बच्चा भी था, राइट? दैट इज़ अ फॉन. Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. Jody actually was drifting. Drift back. Drift means hota hai to move. So he was just going back towards the thought of the fawn only, and he was not able to forget it. What he was not able to forget? That he had killed a doe, right? And there is a little fawn who is actually wandering around, right? Roaming around in the forest, and what he would eat, how he would live without his mother. So all these thoughts were making him miserable. So actually he just slipped out from the table. He just went out from the table and go towards his father bedside. वो अपने father के पास जाता है क्योंकि उसको ये thoughts बार बार परेशान कर रहे हैं. Penny lay at rest. Penny Baxter is actually the name of his father. So he was laying at rest. He was just relaxing because he was not well, and his eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. लेकिन जो उनके eyes तो actually open और clear थी, लेकिन जो उनके pupils थे वो actually अभी enlarged थे, because अभी वो अपने means अभी जो उनको problem हुई है, जो अभी रेटल स्नेक ने बाइट किया है, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाए हैं. Jody asked his father that how you're feeling. So just fine son, old death has gone thieving elsewhere, but wasn't it a close shave? तो उसके father कहते हैं that it was like a narrow escape from the death, right? Means I have just been passed from my death only. It's like a thieving. मैं बच नहीं पाता, but actually I have just saved anyhow. It was very close shave, यानी बस मुझे छू के ही गई है मौत. I agree. And his son replied, yes, of course, daddy, it is correct. Penny Baxter said, I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed. तो जो उसके फादर होते हैं जोडी के, वो कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज वट एवर वॉज नीडेड यू डिड दैट, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. Pa, yes son, Pa, do you recollect the doe and the fawn? Recollect means do you remember? Recollect means do you remember that doe and the fawn? I can never forget them. The poor doe saved me, that is certain. तो उसके फादर कहते हैं कि ऑफ कोर्स आई कैन नॉट फॉरगेट दैम बिकॉज
because of that dough only I have been saved. That is certain and that is true. Pa, the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. Now Jody told his father that what I think is that the fawn is actually very young, right? And he could be hungry also, and he could be scared also because of wild animals in the forest. How could he live there? I suppose so. But I'm a big boy now and don't need to drink milk. उसके father बोलते हैं, yes, of course, I suppose so. Yes, you are right. He might be alone. So he replied that, Pa, see, now I'm a big boy, right? And I know don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the phone? तो जोडी पापा से कहते हैं कि मैं अकेला क्यों नहीं जा सकता उसको देखने फॉरेस्ट, राइट? मैं उसको ला क्यों नहीं सकता? मैं कोई छोटा बच्चा तो हूँ नहीं. एंड ब्रिंग इट हेयर एंड रेज इट. Now he just said that I just want to bring the fawn at home and I want to raise it, means मैं उसको पालना चाहता हूँ. Penny lay quiet. Now Penny was still quiet, staring at the ceiling. Ceiling यानी वो अपनी लेटे लेटे अपनी छत को देखते हैं. और फिर वो कहते हैं, बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन. हैम्ड इन का मतलब होता है कन्फ्यूज. वो कहते हैं कि तुमने मुझे बिल्कुल कन्फ्यूजन में डाल दिया है. इट वोंट टेक मच टू रेज इट, पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स. तो उसके बाद जोडी बोलता है, पा सी it is not very much to tough to raise it, right? And it will soon start eating some leaves and some of the nuts only. You are smarter than boys of your age. We took its mother and it wasn't to blame. तो उसके फादर कहते हैं कि यू आर वेरी मच स्मार्ट देन द एज ऑफ योर देन द बॉयज़ ऑफ योर एज, राइट? And he said that yes, of course we took its mother and it wasn't to be blamed. इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, हमने ही उसकी मदर को मारा था. So of course we are actually to be blamed. Surely it seems ungrateful to leave it to starve, son. I can't say no to you. फिर उसके फादर बोलते हैं, of course it is very ungrateful act of us and we should not leave it to starve. हम उसको ऐसे भूखा नहीं छोड़ सकते और मैं तुम्हें नो नहीं कह सकता. I never thought I would live to see another day. क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं शायद दूसरा दिन ही नहीं देख पाता. Can I ride back with Millville and see if I can find it? Now the character Millville is actually not mentioned fully here. Here is only a short role. He is a horse rider in this story and nothing else information is given. So he asked that, shall I ride with Millville? Tell your ma I said you can go. Then उसके फादर कहते हैं कि जस्ट इन्फॉर्म योर ममा अबाउट इट, राइट? और मेरी तरफ से तुमको परमिशन है. ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन. हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरी वन. सिडल बैक मीन्स जस्ट सिटिंग देयर एंड ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस्ड बाय एनी वन. तो वो वहाँ बैठ जाता है अपनी टेबल पे मदर के पास और मदर वॉज जस्ट गिविंग कॉफ़ी टू एवरी वन. ही सेड, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन. फिर वो अपनी माँ से कहता है दैट सी father has given me the permission to go find the phone. And she held the coffee pot in the midair, means she was quite surprised. And she actually forgets to pour the coffee now because he is quite startled. He is quite surprised. She is quite surprised because of his reactions and his conversation. So she said, what phone? The fawn belonging to the doe we killed. We used the doe's liver to draw out the poison and save Pa. So Jody replied that I am talking about that fawn which we killed to save our Pa. Right, we just draw out its liver and we have just make our Pa perfectly all right. She gasped. Well, for pity's sake. Now she just take a deep breath and she said, of course, because it was needed that time. Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. Now Jody was trying to convince his mother and he said that Pa is telling me that we have done ungrateful act and we should bring that fawn at home. हमें उसको घर ले आना चाहिए. Doc Wilson said, that's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy is right and his daddy is right. Now Doc Wilson, अगैन देर इज़ अ सेकेंड कैरेक्टर जिनका मेन रोल तो नहीं है. मिलविल और डॉक विल्सन का कोई इतना मेन रोल नहीं है, लेकिन ये बस थोड़ी देर के लिए हमको इस स्टोरी में दिख रहा है. सो डॉक विल्सन माइट भी उसके कोई अंकल हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं. तो वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैम, जोडी और उसके फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं.
nothing is free in this world. Melville said, he can ride back with me. I'll help him find it. तो मिलविल कहता है ऑफ कोर्स मैं जोडी को ले जाता हूँ और वो मेरे साथ चलेगा और हम लोग ढूंढेंगे. She set down the pot helplessly. Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it. तो अब उसकी मदर थोड़ी हेल्पलेस फील करती हैं एंड शी जस्ट सेट डाउन द पॉट ऑन द टेबल एंड शी टोल्ड दैम दैट सी इफ़ यू विल गिव योर मिल्क राइट, जो भी मिल्क मैं कॉफ़ी में यूज़ कर रही हूँ, जो मैं तुम्हें दे रही हूँ और जो भी घर में यूज़ हो रहा है, तो अगर तुम ये सारा मिल्क उसको दे दोगे सो वी हैव गॉट नथिंग एल्स, हम उसको कुछ और नहीं दे सकते, हम मतलब वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड. मिलविल सेट कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग. तो मिलविल उसको कहता है सी चलो अब हमें जाना है. माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. माँ बैक्स्टर उसको कहती है दैट सी यू शुड नॉट गो फार right, you should not go farther anywhere. Jody said I'll be back before dinner for sure. Jody बोलता है कि of course we will be back at the time of dinner. Melville mounted his horse and pulled Jody up behind. So Melville just mounted upon his horse and he just make Jody sit at the back and they just started their riding. He said to Melville, do you think the fawn is still there? Will you help me find him? अब जोडी मिलविल से कहते हैं सी व्हाट डू यू थिंक, अभी तुम्हें क्या लगता है कि फ़ोन वहीं होगा और तुम मेरी मदद करोगे क्या उसको फाइंड करने में. वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव. हाउ यू नो ही इज़ अ ही. दैट स्पॉट्स वर इन लाइन ऑन अ डो फॉन पास इज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे. तो अब मिलविल कहता है सी अगर वो ज़िंदा होगा, अगर वो अलाइव होगा सो ऑफ कोर्स वी विल बी एबल टू फाइंड इट राइट. और मिलविल कहता है तुम्हें कैसे पता वो ही है, वो शी भी तो हो सकता है. तो जोडी बोलता है सी जब मेल फॉन होता है तो उसके स्पॉट्स लाइन में होते हैं राइट, और मुझे ये बात पा ने सिखाई थी, सो दैट इज़ वाई इट वॉज अ ही. नाउ पार्ट सेकेंड ऑफ द स्टोरी. Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abundant clearing. He said, cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by a snake and killed the doe, and I saw the fawn. Now Jody was actually means gather his strength. तो वो इन thoughts को हटाता है और फिर वो लोग abundant clearing means there were so much bushes and all, तो वो उसको पास करते हुए आगे आते हैं और उसके बाद वो मिलविल से कहता है सी वी हैव टू गो टूवर्ड्स द नॉर्थ, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे पापा को स्नेक ने बाइट किया था और हमने डो को यूज़ किया था, मारा था उसको. सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम. इफ़ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. अब जोडी को ऐसा लगता है कि मिलविल के साथ उसको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर फ़ोन मर गया होगा या फिर वो उसको नहीं ढूंढ पाए तो इस चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट किसको नहीं होगा, मिलविल को इसका बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा. एंड इफ़ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग विड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट. और फिर अगर फ़ोन उसको मिल जाता है तो वो मीटिंग इतनी ज़्यादा लवली होगी और इतनी ज़्यादा प्राइवेट होगी कि वो उसको शेयर नहीं करना चाहता मिलविल के साथ. तो दोनों ही केसेस में वो सोचता है कि मिलविल को उसे अपने साथ नहीं लाना चाहिए था. ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फूट. अब जोडी कहता है उससे मिलविल से कि सी अब बहुत दूर नहीं है और आगे जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हैं, हॉर्स नहीं चल पाएगा, सो मैं पैदल ही जाऊँगा. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू. लेकिन मिलविल कहता है सी आई एम अफ्रेड अबाउट यू, सपोज अगर तुम खो गए या तुम्हें किसी स्नेक ने काट लिया देन I'll take care. It might take me a long time to find the fawn if he's wandered. Leave me off right here. जोडी कहते हैं सी मैं अपना ख्याल रख लूँगा और मुझे काफ़ी टाइम लगेगा अगर वो इधर उधर घूम रहा होगा, तो मुझे यहाँ छोड़ दो. All right, but you take it easy now. You know north here and east. अब मिलविल कहता है ठीक है, लेकिन ख्याल रखना अपना, और तुम्हें पता है ना नॉर्थ किधर है और ईस्ट किधर है. देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग. और फिर वो कहता है कि सी ये जो टॉल पाइन है ये हमारे लिए कंपस का काम करेगा. वी हैव टू मीट हेयर ओनली. सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड. तो मिलविल उसको बता देता है दैट यू हैव टू कम हेयर नियर अ पाइन ट्री और इट इज़ वेरी मच लॉन्ग. तो
जोडी कहता है यस इट इज़ वेरी मच लॉन्ग एंड आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू. ओके मीन्स ही जस्ट वॉन्ट के मिलविल वहाँ से चला जाए. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड. देन कट टू द राइट. द स्क्रब वॉज स्टिल. अब जोडी वेट कर रहा है कि जो घोड़े के जो हूव्स का मतलब होता है वो जो उसके पॉज होते हैं आगे, तो घोड़े के जो पंजे या वो वाला स्ट्रक्चर होता है आगे, तो उसको हम हूव्स कहते हैं, राइट, उसके पैरों को. तो वो देखता है कि उसके हूव्स की आवाज़ कम हुई कि नहीं हुई. एंड द स्क्रब वॉज स्टिल ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. फिर जोडी देखता है कि अब आवाज़ नहीं आ रही है, अब केवल उसके ही चलने की आवाज़ आ रही है, जो ट्विग्स नीचे जो झाड़ी वाड़ी पड़ी हुई है डाली वाली, तो जब जोडी चल रहा है तो बस उसी की आवाज़ है. ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. तो जोडी सोचता है कि कहीं वो डायरेक्शन भूल तो नहीं रहा. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard का मतलब होता है large bird, जैसे vulture वगैरह जो होते हैं जो dead animals को भी खाते हैं. तो उसके सामने एक बड़ा सा buzzard आता है और flap यानी वो अपने पंख हिलाता है. He came into the clearing under the oaks. और वो oak tree की clearing में आ जाता है, मतलब पेड़ों से होता हुआ जाता है. Buzzard sat in a circle around the carcass of the doe. अब जो कल जोडी ने डो मारा था उसके जो कैरकेस है, कैरकेस का मतलब होता है डेड बॉडी, तो जो कैरकेस है वहाँ वो अभी भी पड़ी है और कुछ बजर्ड्स उसके आसपास भी बैठे हुए हैं. ये बजर्ड तो वो था जो उसके सामने आया, लेकिन वो आगे जाता है तो वो देखता है कि कुछ बजर्ड्स उस कैरकेस के आगे भी बैठे हुए हैं. They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. और फिर वो जोडी को देखते हैं और उनके जो स्क्रॉनी नेक्स हैं, पतले पतले से उनकी गर्दन है, वो घुमाते हैं, जोडी को देखते हैं और हिस साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसकी तरफ. He threw his bow at them and they flew into the adjacent tree. बो यू में से एक डंडी कह लो आप, तो वो एकदम से उनके ऊपर डंडी फेंकता है और फिर वो उड़ जाते हैं, अपने बराबर वाले पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं. द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स. अब वो देखता है कि जो मिट्टी है फॉरेस्ट की वहाँ पे लार्ज कैट प्रिंट्स हैं. बिग कैट्स ने फ्रेश अभी शायद वहाँ पर कुछ मारा है, राइट. एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स. लेकिन उन्होंने डो को नहीं खाया है, उन्होंने डो का जो भी फ्लैश है वो कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया है. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन. अब जोडी आगे पार्टेड द ग्रास यानी ग्रास को पार्ट करते हुए, साइड करते हुए, जो बड़ी बड़ी घास होती है वो वहाँ जाता है जहाँ उसने फॉन को देखा था. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे. और उसको ऐसा लगता ही नहीं कि ये कल की बात है. द फॉन वॉज नॉट देयर, फॉन वहाँ नहीं था. ही सर्किल द क्लियरिंग, वो क्लियरिंग को वहीं घूमता रहता है, राइट. वो आसपास देखता है, देयर वॉज नो साउंड, कोई साउंड नहीं होती, कोई साइन नहीं होता. द बजर्ड्स क्लैक देयर विंग्स. और जो बजर्ड्स हैं दे आर एक्चुअली मूविंग देयर ओनली एंड दे वर क्लैकिंग देयर विंग्स मीन्स द साउंड वॉज कमिंग बिकॉज दे वॉन्टेड टू रिटर्न बैक. वो वापस आना चाहते हैं डो को खाने के लिए, उसका जो फ्लैश है, right, to their business. Means whatever work they were doing, actually they wanted to do the same. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. उसके बाद फिर वो उन स्पॉट पे आता है जहाँ पे उसने फ़ोन को छोड़ा था, राइट. और वो सैंड पर उसके हूफ प्रिंट्स देखता है, यानी उसके पंजों के निशान. द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स. लेकिन फिर उसको पता चलता है कि शायद यहाँ रात में बारिश हुई है और इस वजह से केवल कैट और बजर्ड्स के ही प्रिंट्स रह गए हैं, फॉन के कोई भी प्रिंट्स अब यहाँ नहीं हैं. पार्ट 3 ऑफ द स्टोरी. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. अब कोई मूवमेंट होता है उसके सामने एंड ही वॉज क्वाइट सरप्राइज. स्टार्टल्ड का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, तो वो वापस से पीछे जाता है. द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज. अब फॉन है वहाँ पे और वो अपना मुंह उठा के उसको देख रहा है. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. उसके बाद वो
अपना हेड घुमाता है, राइट, एंड ही जस्ट शूक हिम, और वो उसको देखता है, उसकी जो आइज़ हैं बहुत लिक्विड हैं। इट वॉज क्यूवरिंग, क्यूवरिंग मीन्स इट वॉज शेकिंग, वो शिवर कर रहा है। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, अब वो वहाँ से भाग नहीं रहा है। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, लेकिन जोडी मूव नहीं कर रहा उसके आगे, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर वो उसके सामने जाएगा तो वो कहीं भाग ना जाए। ही विस्पर्ड इट्स मी, वो हल्के से बोलता है कि देखो मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड हिज नोट सेंटिंग हिम, और फॉन अपनी नोज़ ऊपर करता है, और मीन्स ही वॉज ट्राइंग टू स्मेल हिम, वो सेंटिंग यानी उसकी स्मेल लेता है कि वो कौन है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, उसके बाद वो एक हाथ आगे बढ़ाता है और उसके नेक पर हाथ फिराता है। द टच मेड हिम डेल्यूरियस एंड ही वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली एक्साइटेड, फॉन बहुत खुश होता है। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइडेड, उसके बाद फॉन उसके पास आ जाता है। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टर, तो फिर वो जोडी उसको आर्म्स में ले लेता है, राइट, उसकी बॉडी पर उसकी बॉडी को छूता है, तो वो एकदम से शिवर करता है, लेकिन वो मूव नहीं करता, वो डरता नहीं है। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली एज दो द फॉन वर अ चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट, जोडी उसको इतने डेलिकेटली छू रहा है जैसे वो एक चाइना डियर है, कि ज़्यादा छुएगा तो वो कहीं टूट ना जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट है। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, वो बहुत ही शाइनी है, स्मूथ है, एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसके अंदर से ग्रास की सेंट आ रही है। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, अब वो उठता है और उसको उठा के वहाँ से ले जाता है, लेकिन जो उसके लेग्स हैं, इट वॉज हैंगिंग लिम्पली, उसके जो लेग्स हैं वो ऐसे लटक रहे हैं जैसे उनमें जान ही नहीं है। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, अब जोडी को लगा था कि छोटा सा फ़ोन है, छोटा सा बच्चा है, तो इसके पैर भी छोटे होंगे, लेकिन उसको नहीं पता था। ही वॉज़ वेरी मच सरप्राइज्ड कि इसके पैर तो बहुत लंबे हैं। एंड ही हैड टू होस्ट द फ़ोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, अब जोडी को उसको बहुत ऊपर तक उठाना पड़ रहा है। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, अब जोडी को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं इसको उठाऊँ और ये मुझे किक या फिर ब्लीट यानी जो इसकी आवाज़ होती है, कहीं ये चीखने लग जाए, क्योंकि मेरे अंदर से कहीं इसको अपनी मदर की स्मेल ना आ जाए। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, उसके बाद जोडी क्लियरिंग को यानी जो भी झाड़ वगैरह है उसमें से जगह बनाता है और आगे जाता है इनटू द थिकेट। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, अब जोडी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको लेके, क्योंकि वो भी उसके लिए एक बर्डन हो जाता है। जोडी बहुत बड़ा नहीं है अभी, राइट, तो फ़ॉन को उठाना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, अब फ़ॉन के जो पैर हैं वो बार बार बुशेस में फंस रहे हैं और वो अपने आप अपने पैर ऊपर नहीं कर पा रहा है। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, और वो उसके फेस को भी कोशिश कर रहा है कि वो इन प्रिकलिंग वाइन्स यानी जो कांटेदार वहाँ पे जो वाइन्स हैं, जो जो भी बेल वगैरह आ रही हैं, उससे अपने आप को बचाए। इट्स हेड बॉब्ड विद इट्स ट्राइड, और उसका जो हेड है इट वॉज बॉबिंग मीन्स मूविंग हेयर एंड देयर। हिज हर्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, और उसका जो हर्ट है वो बहुत तेज़ तेज़ थम्पिंग कर रहा है, क्योंकि फ़ॉन ने उसको अभी ही एक्सेप्ट किया है। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. उसके बाद उसको ट्रेल यानी कि वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिख जाती है, राइट, जहाँ से वो जो रोड उसके घर पे निकल सकती है। सो ही जस्ट trying to walk as fast as he could. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. अब वो थोड़ी देर रुकता है क्योंकि वो बहुत थक गया है, और जोड़ी को भी नीचे उतारता है, और उसके जो डैंगलिंग लेग्स हैं यानी बिल्कुल भी जान नहीं है उनके लेग्स में, वो मूव नहीं कर पा रहा है फ़ॉन अपने लेग्स को, लेकिन जोडी उसको फिर भी थोड़ी देर के लिए उतारता है। इट वेवर्ड ऑन दैम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीडेड, एंड इट वॉज वेविंग मीन्स उसके जो जैसे आप किसी पेट को प्यार करते हो तो इट स्टार्टेड वेविंग, राइट। सो
इट वॉज ऑल्सो वेवर्ड एट जोडी। जोडी को देख के वो खुश हो रहा है एंड इट स्टार्टेड ब्लीटिंग ऑल्सो, आवाज़ें कर रहा है। ही सेड एंड चैंटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। अब जोडी उसको प्यार से कहता है कि सी, अभी रुको, मैं पहले थोड़ी सी सांस ले लूँ, फिर मैं तुम्हें कैरी करूँगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। अब जोडी को याद आता है उसके फादर ने बोला था कि अगर तुमने एक बार फ़ोन को उठा लिया है तो नेक्स्ट टाइम फ़ोन तुम्हारे पीछे पीछे खुद ही आ जाएगा। राइट, द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम। अब फ़ोन उसको देख रहा है। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। तो अब जोडी उसके पास जाता है, उसको स्ट्रोक यानी उसको छूता है और फिर आगे की तरफ बढ़ता है। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड्स हिम। तो जोडी देखता है कि वो वॉबल करता हुआ यानी धीरे धीरे जोडी के पीछे आ रहा है एंड क्राइड पीटियसली, लेकिन थोड़ी आवाज़ कर रहा है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। वो चाहता है जोडी को फॉलो करना। इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ओन। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। अब जोडी को समझ में आ जाता है कि फ़ोन ने उसको एज अ मास्टर एक्सेप्ट कर लिया है। तो जोडी काफ़ी ज़्यादा लाइट हेडेड फील करता है, हल्का फील करता है। अब वो उसको फॉन्डल उसके साथ खेलना चाहता है, रोम करना चाहता है, राइट, उसको घर पे ले जाना चाहता है। ही डेयर नॉट अलार्म इट। वो उसको डराना नहीं चाहता। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। अब वो उसको अपने हाथों में ले लेता है। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट। और उसको लगता है कि अब वो बिना एफर्ट के ही चल रहा है। हिज आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके हाथों में, एक मीन्स होता है पेन, उसके दर्द होने लगता है और वो फोर्स्ड होता है कि वो थोड़ी देर रुके। वैन ही वॉकड ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वंस। फिर जब वो वापस से चलता है तो फ़ोन उसको फिर से फॉलो करता है। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस दैन पिक्ड इट अप अगेन। उसके बाद वो उसको थोड़ी देर चलने के लिए कहता है और उसके बाद फिर उसको उठा लेता है। अब जो घर का डिस्टेंस है वो जोडी के लिए कुछ भी नहीं था। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इनटू द नाइट। अब जोडी पूरे दिन रात चल सकता है उसको लेके और थोड़ी थोड़ी दूर में उसको भी अपने पीछे पीछे आते हुए देख सकता है। ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग। अब जोडी को बहुत ज़्यादा पसीना आ गया। ही इज़ एक्चुअली वेट विथ स्वेट ऑल अराउंड, क्योंकि जून की मॉर्निंग है, लेकिन कुछ ब्रीज़ चल रही है जिससे उसे थोड़ी बहुत ठंडक लगी। अब स्काई बिल्कुल क्लियर है एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, जैसे कि ब्लू चाइना कप में स्प्रिंग वाटर हो। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। अब वो क्लियरिंग के पास आ गया है और वो देख रहा है कि बारिश के बाद बिल्कुल क्लियर है। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली obliged टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। अब वो गेट के पास आ गया है, वो लैच ओपन करता है एंड ही वॉज वेरी मच अप्लाइड के वो फ़ोन को किसी तरीके से मैनेज करके ले आया है। अब उसको एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ही वुड वॉक इन टू द हाउस, इन टू पैनीज़ बेडरूम, राइट, और फिर फ़ोन उसके पीछे पीछे आए। लेकिन बट एट द स्टेप्स द फ़ोन बॉक्ड एंड रिफ्यूज़ टू क्लाइंब दैम। लेकिन फ़ोन बिल्कुल भी आगे नहीं जाना चाहता, राइट, वो अपने आप नहीं चलना चाहता। सो ही जस्ट पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। पैनी ले विथ क्लोज्ड आइज। तो वो अपने फादर के पास जाता है। पैनी की आंखें अभी बंद हैं। तो वो कहता है जोडी कॉल्ड पा लुक। वो अपने पापा से कहता है पापा देखिए हु हैज़ कम। पैनी टर्न्ड हिज हेड, जोडी स्टूड बिसाइड हिम। पैनी एकदम से देखता है कि कौन है। जोडी उसके बराबर में ही खड़ा है। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और फ़ोन ने उसको कस के पकड़ रखा है। इट सीम टू पैनी दैट द बॉयज़ आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। पैनी नोटिस करता है कि जोडी की आंखों में और फ़ोन की आंखों में इक्वली ब्राइटनेस है। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। और पैनी कहता है दैट आई एम वेरी मच हैप्पी कि तुम वापस इसको ले आए। जोडी देन वेंट टू द किचन। जोडी किचन में जाता है। फ़ैन वॉबल्ड आफ्टर हिम। फ़ोन भी उसके पीछे पीछे वॉबल करता हुआ जाता है। अब जोडी पैन लेता है मॉर्निंग मिल्क का और फिर उसको लेके आता है। क्रीम हटा देता है, जो क्रीम उस पर आ गई है
और स्किम्ड कर देता है क्रीम को जग में। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गोर्ड, एक बोल में वो मिल्क लेता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फ़ोन, और फ़ोन के पास ले जाता है। इट बटेड इट सडनली, लेकिन फ़ोन एकदम से उसको पुश करता है। स्मेलिंग द मिल्क, स्मेल करते हुए उसको नोज से पुश करता है। ही सेव्ड इट प्रिकैरियसली, लेकिन जोडी उसको एनी हाउ सेव कर लेता है फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोर्ड। He dipped his finger in the milk and thrust them into Fawn's soft wet mouth. अब उसको समझ में आ जाता है कि फ़ॉन जो है वो गोड से तो बिल्कुल भी मिल्क नहीं ले सकता, तो वो जोडी अपनी फिंगर्स को डिप करता है और उसके बाद उन फिंगर्स को फ़ॉन के सॉफ्ट वेट माउथ में देता है, और जो फ़ॉन है वो उसको अच्छे से सक कर लेता है। व्हेन ही विड्रॉ दैम इट ब्लीटेड फ्रैंटिकली, लेकिन जैसे ही जोडी फिंगर्स वापस निकालता है तो वो चिल्लाने लगता है और उसको धक्का देने लगता है। फिर से जोडी अपनी फिंगर्स को डिप करता है और उसके बाद फिर से फ़ॉन उसकी फिंगर्स से मिल्क ले लेता है। ही लोअर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क, द फ़ॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, और फ़ॉन भी अच्छे से उसको सक करता है और स्नॉट यानी आवाज़ निकालता है। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, और अपने जो उसके छोटे छोटे से हूफ्स हैं, पॉज हैं, उनको ज़मीन पे तेज़ तेज़ मारता है अगर देर हो जाती है जोडी को फिंगर डिप करने में। As long as he held his finger below the level of the milk, the fawn was content. अब जैसे ही उसकी फिंगर्स जो हैं वो जाती हैं मिल्क में, तो वो देखता है कि जैसे जैसे मिल्क ख़त्म हो रहा है फ़ॉन का भी पेट भर रहा है। इट क्लोज्ड हिज आइज ड्रीमली, अब फ़ॉन को नींद आ रही है। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग, अब जोडी को बहुत खुशी होती है कि वो जो उसकी टंग को फील कर रहा है फिंगर पे, उसको एक अलग ही एक्सटेसी, एक बहुत ही डिलाइट लगता है उसको। इट इज़ वेरी मच डिलाइटफुल। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक बैक एंड फोर्थ, और उसकी जो छोटी सी टेल है वो बैक फोर्थ हो रही है, यानी वो उसको बहुत अच्छे से वेव कर रहा है जोडी को देखकर। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl ऑफ अ फोम एंड गर्गलिंग। गर्गल का मतलब होता है जैसे आप कोई चीज़ स्वेलो कर रहे हो पानी और उसके गर्गल साउंड आ रही है, उसको कहते हैं गर्गलिंग। तो वो देखता है कि लास्ट जो मिल्क है वो एक ही बार फोम और गर्गलिंग में वैनिश हो गया है, राइट। सो एट द लास्ट ही वॉज वेरी हैप्पी, और उसको खुशी होती है कि वॉट एवर ही हैड डन अर्लियर, नाउ ही हैज़ जस्ट टाइम टू हील इट, राइट। वो फ़ोन को ले आया है, फ़ोन की देखभाल करेगा, तो अब वो बहुत ज़्यादा खुश है। Now student, this was the story. I hope you have understood well. Now try out the question answers yourself. Stay tuned. Thank you.